So in this video we are trying to understand the variables and data. In C programming, what is the most important thing? All the statements and functions are defined in the compilers or in header files. We use header file many times, like has include stdi or .h. In this header file, the input output function like printf and scanf and some other functions are defined in the header files, and some other functions, and the definition of the other statements comes with the compilers and in the file. So what is the most important things in the C programming? Those important things are variables and data, because all other things we get with the compilers, and when we store our software to software IDE. So the important things in the C programming and other programming is only variables and data, in which we have to perform other operations. So let's understand the variables. What is variable? Variable tells us two things about the data. One is type of the data, and second is address of the data. Yes, these two things told by variables. And data like data कुछ भी हो सकता है. Something like it may be a string, it may be a integer, it may be a float value, it may be a character, it may be a file or file address, it may be a image, it may be list, it may be array, it may be map. So data has different types. So what are these? These all are the types of the data. So one thing I think it should be clear now. Type of the data. You can see here different types of the data. So when we define a variable, and that time we have to define the type of the data, that int x is equal to 10. So we define here the type of the data, integer. Okay, so now let's talk about the address. What is the address? Like is our home address. Every data has its own address in the memory location, because when data is stored in a memory location, and then we need that address to fetch our data. So that's why हमको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अब हमारे कंप्यूटर को वो डेटा का एड्रेस याद रखना इम्पोर्टेंट है. सो एड्रेस क्या हो सकता है? एड्रेस ये देखिए, दिस इज़ द एड्रेस. बट हमने तो सुना था ये वेरिएबल नेम है. सो यस, वेरिएबल नेम ही एड्रेस होता है, बट एड्रेस एक्स फॉर्म में कभी भी स्टोर नहीं होगा. इट विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ द बाइनरी वैल्यूज़. सो द एक्चुअल एड्रेस जहाँ पे 10 स्टोर्ड है, उसका एक्चुअल एड्रेस क्या हो सकता है? एक्स इज़ ओनली नेम ऑफ द एड्रेस. सो एक्चुअल एड्रेस समथिंग कुछ भी हो सकता है, लाइक 3248, and it may be anything integer value, something like this. So एड्रेस का कुछ हो सकता है. हम इस एड्रेस को एज ए ह्यूमन याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि काफ़ी नंबर है, हमको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो हम इसको नेम दे देते हैं एक्स. बट जो मेमोरी में जो कंपाइलर स्टोर करता है, जो कंपाइलर ही हमारा कंप्यूटर ध्यान रखता है एड्रेस को, वो ये वाला एड्रेस है. और
मेमोरी लोकेशन में भी ये एड्रेस ऐसे नहीं होता, यहाँ बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म होता है। ओके, दैट मीन्स 0-1 के फॉर्म में ये एड्रेस होता है वहाँ पे। नाउ दिस इज द एड्रेस एंड लेट्स टॉक अबाउट द अगेन टाइप ऑफ द डेटा। लेट्स दिस टाइप ऑफ द डेटा इंटीजर। ओके, सो हम जानते हैं इंटीजर 2 बाइट्स लेता है डेटा के लिए। ओके, 2 बाइट मीन्स 16 बिट। दैट मीन्स हम 16 बिट का डेटा इस एक इंटीजर फॉर्म के डेटा में स्टोर कर सकते हैं। सो 16 बिट कुछ ऐसी होंगी 16 बिट आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16. This is the 0 1 2 3, sorry, we'll give it name later. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, सो ये एक मेमोरी लोकेशन, लेट्स से ये एक मेमोरी है और हम इसको वैसे बाइनरी जब इसमें स्टोर करते हैं तो हम लिखते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 2 to the power 15. सो जब हमें एक 16 बिट का डेटा इसमें स्टोर करना होता है तो हम इसमें स्टोर करते हैं। लेट्स से यदि हम 16 बिट हम लेते हैं यहाँ पर 10, सो 10 क्या होगा, हम यदि इसमें 10 स्टोर करना चाहते हैं 10 का बाइनरी क्या होगा। यदि हम ओनली 4 बिट तक कंसीडर करें तो हम 10 का बाइनरी होगा 0 1 0 1. वाई? इट इज़ 2 to the power 0, 2 to the power 2. That means it's 2 and this will be 8. When we add 2 and 8 it will be 10. Okay, this is 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, something like this. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 to the power 3 के नीचे 1, this will be 0, this will be 1, this will be 0. So we store 10. हम कितनी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, हाउ मच वैल्यू वी कैन स्टोर। सो हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 2 to the power 16 बिकॉज इट इज़ 2 बाइट्स डेटा। तो 2 to the power 16 तक हम इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द 2 to the power 16? So this will be around 65,536. Okay, so when we store, let's say स्टोर करना है तो हमको सारे बिट्स को 1 करना पड़ेगा। जितनी भी ये बिट है जब हम सबको 1 कर देंगे तो और हम जब उसका ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। हम इससे ज़्यादा नंबर इसमें स्टोर नहीं कर सकते। जब ये सारी वैल्यूज़ 1 हो जाएंगी, लेट्स 1 1 1 1 1, जब हम सबको 1 कर देंगे एंड जब सबको ऐड करेंगे लाइक 2 to the power 15 प्लस 2 to the power 14 प्लस 2 to the power 13 लाइक दिस, सबको ऐड करने पे हमको ये वाला नंबर मिलेगा। सो ये मतलब होता है कि इंटीजर 2 बाइट्स को लेता है। इंटीजर्स के अंदर 2 बाइट का डेटा स्टोर हो सकता है, तो वो इतना डेटा स्टोर हो सकता है। ओके, जब हम बात करते हैं इसमें साइंड एंड अनसाइंड इंट की, ओके, तो जब साइंड इंट होता है तो वो क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं एंड वो समथिंग 32,000 एंड समथिंग कुछ होगा। एंड जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक तरफ जो आएगी वो नेगेटिव वैल्यूज रहेंगे, सेकंड टाइप जो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे 0। ओके, तो समथिंग वो उसको इसके अप्रोक्स जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जितना यहाँ पे वैल्यूज आएगी तो कुछ वैल्यूज जो नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी वो इधर रहेंगी, वो पॉजिटिव वैल्यू इधर रहेंगी। वो साइन इंट में होता है। लेकिन अनसाइन इंट में जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता, माइनस सिर्फ प्लस पॉजिटिव साइन होता है, तो उसमें हम इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है कि 2 बाइट्स का डेटा लेता है इंटीजर और हम डेटा इसमें इस तरह से स्टोर होता है जो कि एक बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। आई होप आपको वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच।